टेक्सास में चले सर, पिछले 24 महीनों में 48 मस्जिद बन गई टेक्सास में। अनबिलीवेबल बट ट्रू। 48 इन जस्ट लास्ट 24 मंथ्स। हर महीने में 2। वाओ, क्या गजब की तैयारी है भाई। अच्छा, मजे की बात यह है, टेक्सास में चर्च नजर नहीं आ रहा कहीं, साफ मस्जिद ही मस्जिद है। लग ही नहीं रहा भाई, ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम कंट्री का अपन मैप देख रहे हैं। कमाल हो गया। तो अरुणाचल वाले समझदार हैं, ऐसा नहीं बेवकूफ़ है, उन्हें पता है कल क्या होने वाला है। उधर अजीत डोभाल साहब का एक वीडियो आया है, जरा वीडियो देख लें। And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been the six under the official secret type and the counter-espionage cases, I think people in media must be the six, that all these cases which come more than 4,000 cases, probably not even 20%. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with. इस बयान को लेकर जो है, इस बयान में अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि ISI ने जो अपने स्पाइस रिक्रूट किए हैं उसमें मुसलमान से ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदुओं को ज़्यादा रिक्रूट किया गया। आई ये कब हुआ? हनी ट्रैप समझ में आता है, रिक्रूटमेंट नहीं समझ में आता सर। है? ऐसा कैसे हो गया? लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया और उसमें सच्चाई बताई गई। Let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been the six under the official secret type and the counter-espionage cases, I think people in media must be the six, that all these cases which come from more than 4,000 cases, probably not even 20%. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. तो कहते हैं 1947 से लेकर आज तक अगर आंकड़ा देखें तो उसमें हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, और हम मुसलमान को साथ लेकर चलेंगे। ये मुसलमान का जो नैरेटिव चला जा रहा है बिल्कुल है, उनका कहने का पर्पस कुछ और था, लेकिन इसमें हिंदुओं को घसीटने की आवश्यकता नहीं थी। खैर बहरहाल, इसके बाद में जो है अजीत डोभाल जी का बयान आता है, एक स्पष्टीकरण आता है उनकी तरफ से कि AI वीडियो है। मनी कंट्रोल से लेकर तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको छापा है। NSA अजीत डोभाल सेज मोर हिंदूज अट्रैक्टेड टू ISI's फेक वीडियो फेक रेजेस AI थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो बोले कि AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ वीडियो है, ये वीडियो असली वीडियो नहीं है। अब ये काफ़ी गंभीर सवाल खड़े कर देता है, क्या वाकई में असली वीडियो नहीं है? अगर असली वीडियो नहीं है तो ये वीडियो 11 मार्च 2014 को अपलोड हुआ था। ठीक है ना? अब आप सोचिए कि इतना पुराना वीडियो कैसे अपलोड हो जाएगा। ये उसी का एक अंश है, उस वीडियो का। हम उस वीडियो को आपको प्ले करके दिखाते हैं, जो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है। If I think I want to, he's able to. I want to make it. This is my country. Why are Muslims so? I will defend it as much as possible. In 1857, who all fought? It's a Muslim who fought as much as anything. Also, 26/11 was a military operation. Okay, 2, 3. So we take them together. Professor Akhtar Ghosh first, And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man with this thing, the number of persons that ISI is recruited for intelligence task in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been the six under the official secret type and the counter-espionage cases, I think people in media must be the six, that all these cases which come from more than 4,000 cases, probably not even 20%. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. okay. Professor Akhtar Ghosh, the lady here, You mentioned वी विल कैरी मुस्लिम्स विद अस एंड वी विल मेक इट अ ग्रेट नेशन। ये उनका बयान है, लेकिन उससे पहले ये बयान भी है कि हाँ, उन्होंने इस बात को कहा। मुझे नहीं मालूम कि अजीत डोभाल जी कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन 1947 से यदि आप आज तक का देखेंगे तो ISI के रिक्रूटमेंट, हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। रिक्रूटमेंट की यदि बात करेंगे कि ISI के एजेंट हिंदू ज़्यादा या मुसलमान, तो मैं कहूँगा फिर एक बार ओपनली इस पर बहस हो जानी चाहिए, आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा कहना कि हिंदू ज़्यादा है तो बिल्कुल भी ये बात सही नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत है। हिंदुओं का आंकड़ा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा और कम कि अगर आप बात करेंगे तो आंकड़े निकाल लीजिए, आपको सामने दिख जाएगा कौन ज़्यादा कौन कम है। हनी ट्रैप इज़ नॉट अ ISI एजेंट, है ना। किसी को यूज़ कर लेना वो एजेंट नहीं होता। एजेंट वो होता है जो जानबूझकर एक काम कर रहा होता है और वहाँ का रिक्रूटमेंट पर होता है, तनख्वाह मिल रही होती है उसको, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरह से गलत है। 2014 का वीडियो पता नहीं कब का होगा, 11 का होगा, 14 में तो शायद अपलोड दिख रहा हो। अब जो है उसको लेकर बवाल कट रहा है। अब जो है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सही है नहीं। 11 साल पहले का ये अपलोड है, ये आप लोगों को दिखा दूँ मैं। 1,14,000 व्यूज़ 11 ईयर्स अगो,
11 मार्च 2014। तो 11 मार्च 2014 को अपलोड हुआ, 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड हुआ। ठीक है ना। तो सरकार का कहना है, सरकार ने जो तमाम सारे जो लोग हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इसको फैक्ट चेक कर दिया कि बोले ये तो AI वीडियो है। लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। AI वीडियो तो आज बनेगा, 14 में तो नहीं बनेगा। और 14 से अपलोड होकर कैसे अभी तक रखा हुआ है, उसको डिलीट क्यों नहीं कराया, अगर ऐसा तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में ये उन्होंने कहा था, है ना। हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, एकदम स्पष्ट बात है। ठीक है, हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते कि ज़्यादा हिंदुओं का रिक्रूटमेंट हुआ है मुसलमान की अपेक्षा ISI में। अगर ऐसा है तो फिर आंकड़े सरकार को जारी कर देना चाहिए, हमें भी तसल्ली हो जाएगी, हम चुप हो जाएंगे, है ना। गलत बात है, झूठ बात है, शुद्ध हिंदी में। आइए अब आगे चलते हैं। बिफोर पहलगाम JNK DGP ऑन बाइंग स्प्री, 10 करोड़ का मनाली का घर 2004 में लिया, 26 करोड़ का बंगला लिया। ये रिपोर्ट आई थी अप्रैल 29, 2025 में। इस रिपोर्ट को लोग जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पे लोग इसको जोड़ रहे हैं, और उससे जोड़ रहे हैं जो अभी धमाका हुआ कश्मीर में, जहां 350 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट रखा था। कहते हैं कि उसको उसकी फॉरेंसिक के लिए उसको भेजा जाना था, तो उसको छोटे छोटे उसके बैग बनाते ना, बैग बनाए जा रहे थे, तो सिलने के लिए किसी को बुलाया था, तो उससे कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अब जिसको भी बुलाया सिलने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ आप एक्सप्लोसिव में डील कर रहे हो, इतना आप जो है केयरलेस कैसे हो गई, ये समझ में नहीं आती बात, गले के नीचे नहीं उतरती। इसमें जांच होनी चाहिए, गंभीर जांच होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है ना। और ये भी जांच होनी चाहिए कि ऐसे कैसे रखा हुआ था, और कैसे इनको कुरियर की तरह से भेज दिया जा रहा कहीं से कहीं, जबकि एक्सप्लोसिव है। समस्या ये कि इसको जांच में इसलिए भेजा जाना था कि जांच में भेजने के बाद ही आप इसको सज़ा करा पाते हैं। अब ये फट गया, सबूत खत्म हो गए, तो अब जांच का किस चीज़ की कराओगे, सबूत कहाँ से लाओगे, और कैसे बताओगे, कोर्ट में कैसे साबित करोगे कि फला आदमी ने जो है एक्सप्लोसिव लेके जा रहा था। ये सारे लोग तो छूट जाएंगे, बच जाएंगे इस तरह से। जीरो कहना है, सर अजीत बोले हैं तब बैकग्राउंड साउंड नहीं होती, जब और लोग जवाब देते हैं तब साउंड बढ़ता है, ये डबिंग लगता है, सुन के देखो। AI वीडियो नहीं लग रहा है अब तक, AI DIR 84 जगह है। नहीं, मुझे आइडिया नहीं, देखिए सर मैं तो इसमें विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ कि AI है या नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि वो अभी भी जो है वो वीडियो वहाँ मौजूद है, और उसमें अभी भी जो है वो चीज़ जो उन्होंने कहा था वो मौजूद है। 11 साल पुराना वीडियो है वो, आज नया नहीं है। तो उस पर जांच होनी चाहिए, और जहाँ उन्होंने ISI बोला उसको पॉज कर दिया गया उतने उस पर्टिकुलर वॉइस को, क्योंकि आप किसी दूसरे देश की एजेंसी का नाम नहीं ले सकते ना इस तरह से, फिर वो आपके ऊपर क्लेम करेगा। ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों फंसेंगे इन चक्करों में। चलिए अब आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं, अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो ISI ने ज़्यादा रिक्रूट हिंदू किए, बम तो पाकिस्तान के रिक्रूट किए हुए ISI के मुसलमान फोड़ रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने, वो मुसलमान जो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, उन्होंने भी मुझे ये नहीं कहा कि जो तुम्हारे खिलाफ फतवा निकला ये गलत है। कह सकते थे ना, चलो पब्लिक में आके आपको कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि आपके रिलीजन में इतने टेररिस्ट है कि वो आपको भी मार देंगे, कि कैसे दिया, किसी मुर्तद का साथ कैसे दिया, ठीक है। लेकिन आपको पता है अपने मजहब की हकीकत, ठीक है, समझ आ गई। आप DM करके, आप उससे तन्हाई में अकेले में तो आप कह सकते थे ना कि यार ये गलत हुआ है, हम तो इस चीज के फेवर में नहीं है कि किसी अकेली औरत पे या किसी अकेले इंसान पे जो कुछ कर भी नहीं रहा। मैंने कौन से यार 60 लोग मार दिए बैठे, मैंने तो किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, तो मेरा कत्ल क्यों होना चाहिए, मैं क्यों वाजिब कत्ल, मैंने तो किसी कत्ल नहीं किया। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म पे, सिर्फ अपनी जबान खोलने पे, सिर्फ इस बात पे कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं वाजिब कत्ल। और इस चीज का इन मुसलमानों को अच्छी तरह से पता है, चीज को समझते हैं, ठीक है। और अगर ये चीज को नहीं मानेंगे ना, तो काफिर हो जाएंगे। इसीलिए इनको कोई अफसोस नहीं है, इसीलिए इनको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। इतने तो पीसफुल हो ना, इतने अमन मिजाज उन लोगों का, रिलीजन ऑफ पीस है, ठीक है। तो मेरी तरफ तो किसी की हमदर्दी के मैसेज नहीं आया, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि देखो हम मुसलमान हैं लेकिन हम ये गलत समझते हैं, हमें ये एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी लगती है कि जो तुम्हारे खिलाफ फतवा निकले। मैं आपको यकीन दे सकती हूँ, मुझे एक मुसलमान ने बात की थी। इसका क्या मतलब, जो चुप साधता है ना, वो मतलब साथ दे अगले बंदे का, और ये साथ देते टेररिज्म का, इनको पता है। इनमें से खुद जो है ना बड़े होशियार और चालाक होते हैं, ठीक है। वो अपनी जिंदगी आजाद करना, वो क्यों बम पहन के खड़ जाए, ठीक है। वो फटेंगे 100 लोगों को मारेंगे तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारेंगे, ठीक है। या खुद भी साथ ही मर जाएंगे, सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे तो खुद साथ मर जाएंगे, कोई और टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, कहीं और ब्लास्ट करेंगे जाके तो खुद जेल में चले जाएंगे। वो ऐसा क्यों करें, अपनी जिंदगी क्यों खराब करें। हाँ, लेकिन वो चुप करके उन लोगों को साथ जरूर देंगे, उन पे आवाज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर से उनको पता है कि उनका रिलीजन इस चीज को प्रमोट करता है, और उनके रिलीजन की सब जायज है। और अगर इसकी मुखालफत करेंगे ना, आके इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ भाई मुर्तद को नहीं कहो वाजिबुल कत्ल, हाँ लोगों के खिलाफ फतवे नहीं निकालो, हाँ बम ब्लास्ट नहीं करो, या किसी को काफिर को वाजिबुल कत्ल ना मानो, तो ये खुद भी इस्लाम के दायरे से बाहर जाएंगे, इनको अच्छी तरह से पता है। तो ये जो इनकी मुनाफिकत है ना, उसको अभी
एक्सपोज करने का टाइम आ गया। ये सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये सारे के सारे पागल हैं, दिमागी अपंग हैं। ठीक है, मैं बता दूंगी, जो हिंदी में कहते हैं दिमागी अपंग, ये सारे पागल हैं। इनकी पागलपन की डिग्री डिफरेंट हो सकती है। कोई थोड़ा कम पागल है, कोई थोड़ा ज्यादा पागल है। कोई लोगों को खाता हुआ देख के, पोर्क खाता हुआ देख के पागल हो जाता है कि ये हराम है, हराम है। कोई लोगों को कपड़े पहनते हुए किसी औरत को आजाद जिंदगी गुजार के दिखता हुआ पागल हो जाता है। ठीक है, कोई जो ज्यादा पागल होता है वो फट जाता है, वो सुसाइड जैकेट पहन के फट जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही पागल, और ये इस्लाम बकायदा मेंटल इलनेस है, इसको मेंटल इलनेस डिक्लेयर किया जाए। ये मेरी अपील है पूरी दुनिया से, भारत से भी अपील है कि इसको मेंटल इलनेस डिक्लेयर करो इस्लाम को। पर डोवाल साहब तो कह आज रहे तक थे किसी ने कि रिक्रूटमेंट में हिंदुओं का ज़्यादा हाल है, ऐसा वीडियो चल रहा था। उस वीडियो की जांच होनी चाहिए पूरी, और सच्चाई सामने आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है, हो भी जाता है, स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है कि हम लोग किसी और को कंसोल करने के लिए किसी के लिए कुछ कह देते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। और ज़रा देखें कितने लोग आए थे। भाई साहब सामने ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आई है, ये देखिए भीड़ एक बार देखिए। इस पूरी प्लेटफॉर्म पर 6 भर रही है, देखिए पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पर 6 भर चुकी है। इतना की इतनी क्राउड है इस ट्रेन में। ये बिहार से आई है भीड़, गुजरात, इलेक्शन हो गए, वोट दे दिया, अब सब जो है अपने अपने घर आ गए। चलिए, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि कांग्रेस, इंडिया अलायंस और आरजेडी वाले जो विपक्ष है, उनकी आप हताशा देखिए, और हताशा में देखिए जरा गालियां देखिए। इट्स सेमी करके हैं, बिहार चुनाव खत्म होने पर गुजरात के उधना स्टेशन पर भीड़ अंडों की। हाँ, हर घर सरकारी नौकरी को लात मारने वाला देश का पहला राज्य बिहार। अरे मतलब अगर जनता ने वोट नहीं दिया तो आप ट्रोल करोगे, आप जनता को गालियां देना शुरू कर दोगे। कमाल है, मतलब जनता अंडे हो गई। बहुत बढ़िया, तरक्की पर है। पापा में सिलाइए भैया, स्वागत है। क्या कहें, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ज़रा एक और कमेंट देखिए, मज़ेदार है, एक पोस्ट, बहुत मज़ेदार पोस्ट है। सॉरी, जाकिर अली त्यागी जी की पोस्ट है। कहते हैं, हेलो तेजस्वी यादव, मैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आपकी पार्टी में जिन लोगों ने सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूबर्स पर पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने व बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने दर्जनों बार दिल्ली के यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग कर ट्रकों में भर भर कर बिहार ले गए। उन यूट्यूबर्स को दिन रात कमर तोड़ मेहनत करवाई, उनसे पूरा काम कराया, और पेमेंट देने का वक्त आया तो बिचौलियों ने साफ कह दिया पार्टी से पैसा नहीं मिला। आई ला, जाकिर अली त्यागी भैया, आपने तो पूरी पोला ही खोल दी, इतनी भयंकर है। कमाल हो गया, 15-20% पेमेंट मिला बस यूट्यूबर है। वैसे तो सबको मालूम है सारी पार्टियां ऐसा करती, पर भैया यूट्यूबर्स के साथ मत किया करो, पब्लिक में आ जाती बात कि पैसे नहीं दी, पैसा खा गए हमारे। पैसा खाने में बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं, सभी पार्टियां हैं। 19 का भी पेमेंट बकाया, कुछ लोगों का तो बेचारे बोल नहीं पा रहे। मेरे पास आए थे, भाई साहब पेमेंट, हमने कहा ये धंधा हम करते ही नहीं है, हमसे पूछ के किया था क्या? हाँ, काम करो, ईमानदारी से करो, पैसे लेके करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, पैसे डूब जाते हैं लोगों के। खैर चलिए, कोई नहीं। रोहित प्रणाम, जस्ट नाउ आई मैसेज थ्रू सुपर चैट ऑफ ₹200 बट मैसेज नॉट सेंट एन अमाउंट डिडक्टेड। प्रेम क्षेत्री जी करें, मेरे ख्याल से आपको अमाउंट वो वापस आ जाएगा, है ना। ऐसा मुझे लगता है कि अमाउंट आपका वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट तो यहाँ नहीं दिख रहा है। सर ये तो कुछ भी नहीं है, जो लोग सुपर चैट कर देते हैं उनका यहाँ कमेंट दिख भी जा रहा है, उसके बाद उनका अमाउंट वापस हो जा रहा है, यूट्यूब उसके बाद उनका अमाउंट वापस कर दे रहा है, रिवर्सल। बताइए आप क्या करेंगे, है ना। खैर चलिए अब आगे चलते हैं। तो पेमेंट नहीं मिला भैया, यूट्यूबर्स बेचारे परेशान हैं। यूट्यूबर्स इंडिया अलायंस के हैं बेचारे, बड़ा बुरा हाल रहा। और वो क्या था, भूरा बाल साफ करो, ये आ गया सर भूरा बाल। भू 25 रा 32 बा 14 ला 2 और पूरा हो गया 73। भू बहुत कम है यार, 25 पे, सॉरी बा बहुत कम है यार, 14 पे अटका बा को आगे बढ़ना चाहिए। साफ हो गया भूरा बाल है, कितने 73 भूरा बाल साफ करने चले थे। ये देश कभी भी नफरती चिंटुओं की राजनीति में नहीं आता, और हिंदू इतना स्मार्ट हो चुका है, पहले नहीं था, पहले बुद्धू था, लेकिन आज स्मार्ट हो चुका है। उसे मालूम है आप हमें जाति बांट के क्या करना चाहते हो, उसको बहुत अच्छे से मालूम है ना। चलिए अब कुछ वीडियोज आ रहे हैं, जरा देखें। ये नया टारगेट है आजकल इंडिया अलायंस वालों का। आर यू ऑल वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? शुद्ध शाकाहारी। बिल्कुल। तो दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मीट। क्या बात है, क्या खुशबू है। आने वाले समय में आली नगर को, तो किसी ने पूछा था इनसे, आप लोग वेजिटेरियन नॉन वेज, बोले प्योर वेजिटेरियन। फिर उसके बाद इनका दूसरा क्लिप आई, बोले आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मीट। कभी कभी मजाक भी इतना भारी पड़ जाता है। और जो लोग, देखो मैं इसमें सीधा बोलूँ,
चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जो लोग अपनी माँ बहन की दलाली करते हैं, उनको बेचते हैं, लिटरली दलाली करते हैं, लिटरली, कभी मंत्री जी का पेश कर रहे हैं, कभी किसी का, है ना, वही लोग ऐसी क्लिपिंग करते हैं। इसने ये मजाक किया था, कटहल बना रही थी, उसने बोला था आज हम बना रहे हैं मीट, और बाकी आगे की क्लिप काट दिया और लग चिपका दिया। अब मैथिली ठाकुर के पीछे पड़े लोग। सच पे लड़ो यार, झूठ पे क्या हो जाएगा। और चुनाव तो जीत चुकी है, अब तो विधायक है, आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है ना। खैर, टिकट कैसे मिल गया इस पे लोग परेशान है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। बट एनीवेज, लव हर हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर। फिलहाल तो आपकी है कि आपको उसको झेलना है 5 साल, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। आप कितना भी रोते रहो। और वो एक चीज़ और बोल रही थी वो, क्या कि नाम बदलना है, अलीनगर से क्या करना है, सीतानगर। अभी तो बहुत कष्ट होना बाकी है, हाँ? ये पहला काम कर देना मैथिली, बहुत फायदे में रहोगी। क्या यूपी में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कोई सुधार होने वाला है, क्योंकि सरकार ने बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। क्या सरकार और भी कोई चेंज लाने वाली? कंटिन्यूस चेंजेस आएंगे श्रीवास्तव जी, है ना, शुभम जी, कंटिन्यूस चेंजेस चलते रहेंगे, अभी और चेंजेस होंगे, है ना, तो उसके लिए लोग तैयार रहे, है ना। कई सारी चीज़ों में बदलाव आएगा, पब्लिक को भी सहयोग करना होगा, बट आपका ओवरऑल बेनिफिट ही होगा। अभी गेट्स कह रहे हैं, गुरु जी बंगाल में तख्ता पलट कब होगा, मेरी 100 करोड़ की ज़मीन फंसी पड़ी है। 100 तलोल हो जाएगा इस बार। चलिए, आपकी फ्री हो जाएगी ज़मीन। मैं भी सोचूं यहाँ पर अचानक स्पैम कैसे होने लगा, तभी मैं सोचूं क्या हुआ। सौरभ जी कह रहे हैं, हम लोगों को मैथिली ठाकुर के भजन पसंद हैं, कम से कम ये ट्रेडिशनल है, फालतू नहीं गाती। हाँ बिल्कुल, वो सुबह वीडियो देख के तो मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया, फिर मैंने पता किया, फ़ोन लगवाया, मैंने कहा पता करो भाई ये मीट वाला वीडियो कैसे। तब मालूम चला कि भैया वो मीट वाला उनका जो वीडियो है, वो उन्होंने मजाक किया था, वो कटहल बना रही थी। बताइए, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम यही चला देते आज। खैर चलिए भाई, बीजेपी के राज में सब कुछ अच्छा चलता है। ये लोग बीजेपी भाई सेक दिया, और दोबारा सेक दिया भाई। भाई साहब, ये सिकाई हो गई बीजेपी के राज में, हिंदुओं की सिकाई हुई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ जो है पुलिस ने उत्तराखंड में हिंदुओं को सूद दिया। हल्द्वानी में गौ माता का कटा हुआ सर मिला था, इसको लेकर हिंदू जो है वो विरोध कर रहे थे। पुलिस आई है, पुलिस ने जो है हॉट क्रॉस बंस बना दिए, लगे सुताई। धामी जी में एक बात था, मतलब हो गया, मन भर गया अपना, बस अब नहीं हो गए बहुत सीएम, सिर चढ़ के बोलने। ऐसा नहीं होता खाना ज़्यादा खा लेते सिर पे चढ़ने लगता, अरे बस अब पूरी और नहीं खानी, तो ऐसा हो गया सत्ता बस अब नहीं, और नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है तो हटा दो इस पुलिस जो आपका एसपी है, जो कमिश्नर है, आपको हरवा देगा। ये हिंदू है, ये एक बैत का हिसाब कर लेंगे आपसे हम। देश में माहौल वैसे भी ठीक नहीं चल रहा, 70 साल का दबाया हुआ कुचला हुआ हिंदू है ये, अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आपकी पुलिस इनके ऊपर अत्याचार करेगी तो इससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हटा दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, इनको घर पहुंचा दीजिए, 2-4 को लाइन अटैच कर दीजिए। कमाल हो गया, इसीलिए चुना है आप लोगों को, गजब। चलिए अब आगे चलते हैं, 2020 का एक ट्वीट लेकर चलते हैं। संबित पात्रा जी ने भयावह वीडियो डाला था, ओ माय गॉड, पालघर के साधुओं की हत्या हो रही थी, उसका वीडियो डाला था। सुनील देवधर ने लिखा, स्थानीय लोगों के अनुसार, ये संगठन के व्यक्ति हैं, स्थानीय लोगों के अनुसार वो शख्स शरद पवार जी के एनसीपी का जिला पंचायत सदस्य काशीनाथ चौधरी है। उसके साथ विष्णु पात्रा, सुभाष भांवर और धर्म भांवर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी वहां थे। अच्छा, इनकी हत्या में साधुओं की, ओके। 2020 का ये ट्वीट है, एक मिनट मैं दिखा दूं आप लोगों को। सुनील देवधर जी का ये ट्वीट आज भी मौजूद है, ये रहा अप्रैल 20, 2020। तो ये ट्वीट था, अच्छी बात है। फिर इसके बाद आई आज सुबह खतरनाक न्यूज़, हाँ माजा तुमजा, आहा, ये तो आपने ही तारा है। एक मिनट, थोड़ा ट्रांसलेट कर ले, अंग्रेजी में कर लो भाई। यस, लोटस इन हैंड्स ऑफ द सेम काशीनाथ चौधरी हु वाज एक्यूज्ड बाय बीजेपी इन द पालघर भन मैसेकर। ओह, पालघर के साधुओं के हत्या में जिसका हाथ था, वही आ गया बीजेपी में शामिल। ओए होए भाई साहब, गजब हो गया। ऐसा मत करो भैया, इतना बवाल ना करो, मतलब बीजेपी के समर्थकों की इतनी बेइज्जती मत करो कि बेचारे कहीं जीने लायक ना बचे, कहीं मुंह दिखाने लायक ना बचे। इसके बाद बचा बवाल, भयंकर बवाल सोशल मीडिया पर, और ऐसा बवाल मचा कि कुछ ही घंटों में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, श्री भरत राजपूत जिला अध्यक्ष पालघर, श्री काशीनाथ चौधरी यांच्या पक्ष प्रवेशास तत्काल स्थगित किया अभी,
अभी रोको रोको रोको, इनको जो पार्टी में ला रहे थे उसको अभी फिलहाल स्थगित किया। अरे कोई मेरे को बताएगा, ये जो बीजेपी के लेटर हेड हैं, ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है, एक जैसे होते हैं, हर जगह अलग होते हैं कि समय के अनुसार, जैसा जहां आवरण उड़ना उड़ लिया, यहां पर जो हरा कर लिया भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र आई, शुक्र है बंगाल और केरल में नहीं गए तो फूल को बुरका उड़ा देते। वहाँ के लेटर हेड देखने में ऐसे बुरका तो नहीं उड़ा हुआ है। खैर बाकी जगह तो मैंने सब जगह भगवाई देखे, मैंने हरा नहीं देखा, पहली बार ऐसा हरा देख रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगा देखने में। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाकर जो है आने से पहले उनकी विदाई हो गई और जो है रोक दिया गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, जल्दी बताओ। वो तो ब्लॉक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, आशु जी आप निपट जाओगे किसी दिन, है ना, आप किसी दिन निपट जाओगे, मुझे सब दिख रहा है, आप टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। सही हुआ या गलत हुआ, लोगों का कहना सही हुआ। अच्छा पहले देखें जरा इनका आगमन देखें। तो ये हैं वो जो आए थे भाई साहब, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कमाल हो गया, गजब हो गया। चलिए, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही हुआ? सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस मुद्दे को उठाया किसने था? इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, कांग्रेस INC इंडिया। पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर बीजेपी ने काशीनाथ चौधरी को मुख्य आरोपी बताया था। तब बीजेपी के नेताओं ने काशीनाथ चौधरी को लेकर खूब हमला बोला था। अब खबर है काशीनाथ चौधरी बीजेपी गाजे बाजे के साथ पार्टी सदस्यता दिलवा दी है। ये बीजेपी का दौरा चल। कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है? क्या ये इतने काम का आदमी है काशीनाथ चौधरी? अगर कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है इस चीज़ को लेकर, कोई व्यक्ति आपके यहाँ से पार्टी छोड़ रहा है तो छोड़ रहा है, उसमें इतना दर्द तो होना नहीं चाहिए। अगर आपका हैंडल, ऑफिशियल हैंडल इसको वीडियो को ट्वीट कर रहा है, वीडियो को लोगों के सामने ला रहा है, ये लिख रहा है कि बताओ देखो कैसा हो रहा है, तो मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो इसका मतलब काम का आदमी तो है, कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रही है, वो बीजेपी में आ गया। अब आप लोग सोचिए क्या करना चाहिए। समस्या क्या, आप में से ज़्यादातर लोग राजनीति से जुड़े नहीं हैं, और जो जुड़े भी होंगे वो बहुत लोअर लेवल पर होंगे। कोई बड़े लेवल पर यदि राजनीति वाला होगा तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि नहीं भाई लाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सत्ता आनी चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। सत्ता में नहीं चिल्लाते रहोगे इसको न्याय दे दो, उसको न्याय दे दो, कुछ नहीं है न्याय मिलने वाला। सत्ता में हो तो आप 2 मिनट के अंदर आदमी की FIR कराओगे, उसे अंदर करा दोगे। तो कहीं गलती तो नहीं हो गई? ये जो सुबह चिल्लाए लोग, ये गलत तो नहीं हो गया कहीं? नहीं, एक बार जरा डबल क्रॉस कर लेना। कांग्रेस कह रही है ना, मेरे कान वहीं खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ने नहीं कहा होता ना तो मेरे कान खड़े नहीं होते। क्योंकि मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। मामला और पेचीदा हो गया सर। सोशल मीडिया पर आज एक और फोटो निकल आई। मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी सुपुत्रियां हैलोवीन मना रहे हैं। आई, ये तो हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, तो भारत का भी नहीं है। नाउ व्हेन एनीवन मेंशन्स पालघर साधु लिंचिंग इंसिडेंट, इट रिमाइंड्स मी ऑफ हैलोवीन पार्टी पिक वेयर अमृता फडणवीस फादर्स ड्रेस्ड एज लिंच्ड पालघर साधु फॉर सम रीजन। आई, अच्छा ये ऐसा भी हुआ था क्या? अगर ऐसा हुआ था, ये पालघर के साधु यदि बने तो ये उचित नहीं है, मुझे तो नहीं लगता उचित है, बाकी जनता डिसाइड करे, क्योंकि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, ये तो वो मजाक उड़ाने जैसा हो जाएगा। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। साधुओं की हत्या इस देश के अंदर ये सबसे गंभीर बात होनी चाहिए। और हैलोवीन बनाया जा रहा है तो सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल है, ना हमने डाली ना हमें इससे मतलब। और ये पोस्ट सही भी है कि नहीं, अभी इसका भी जो है कहना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन पोस्ट सही है क्योंकि अमृता फडणवीस ने ही नेवर ट्राई टू चेंज मी, ही जस्ट बिकेम द पार्टनर इन माई लकी टू बी योर डॉटर डैडी। अच्छा ये है इनके पापा। 20 जून 2021 की है, अभी की नहीं है, 2021 की है। तो ये उनके हैंडल पर मौजूद है तस्वीर। सो नोबडी कैन से कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तस्वीर तो फेक नहीं है कम से कम, पर पब्लिक जो है उसको अपने तरीके से लिख, अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर रही है। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा और अमाउंट के साथ सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबा अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, राइट।